Dear students, this is your mock test for 22nd August. A detailed answer. I will try to explain as much as possible. Experts say older people were happier and healthier in the past because they did more exercise and spent more time with family and friends. Whereas now many suffer loneliness and health problems. What are the causes of this and what are some solutions? So this is a cause and solution essay. As usual, you have to understand the question first, convert it in your own language, make it real simple, add your everyday examples to it, think about it, plan it, run the essay in your mind before writing. Now I have decided for the first 2-3 minutes I should spend making as much new vocabulary as possible. Older people, the elderly, happier, more happy, joyful, healthier, in better health, fitter, in the past, in the days gone by, more exercise, worked out, spent more time, were more involved in the family and friends, kith and kin, whereas, however, many, several, a few of them, quite a lot, causes, roots, reasons, seeds, solutions, antidotes, remedies, way out. कुछ लोग मानते हैं कि पुराने ज़माने में बुज़ुर्ग लोगों की उम्र भी लंबी होती थी और वो लोग सेहतमंद भी ज़्यादा होते थे क्योंकि वो लोग अपने परिवारों के साथ समय बिताते थे और कसरत वगैरह भी करते थे। अब ऐसा नहीं है। अब वो लोग अकेले पड़ गए हैं, अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं और उनकी सेहत भी ठीक नहीं रहती। क्या कारण है और इसका कोई हल भी है इस समस्या का? रफ वर्क करिए पहले। कॉजेस मुझे लगता है फैमिली छोटी हो गई हैं, वर्क का प्रेशर बढ़ गया, सब काम करने लग गए। अब लॉन्गर लाइफ स्पैन तो हो गया लेकिन उसमें आरामदायक लाइफ स्पैन है, सीडेंट्री है। सीडेंट्री मीन्स हिलजुल नहीं करते आप। फैमिली भी इधर से उधर माइग्रेट करती रहती हैं और वो पहले किसी आज के जो बुजुर्ग हैं किसी पुराने समय में जब वो जवान थे वो खुद भी एक रैट रेस का हिस्सा थे तो उन्होंने ऑब्वियसली अपने बच्चों को भी वही सिखा दिया। तो कंपैरिजन विद द पास्ट इज़ अ मस्ट। आपको ज़रूर पास्ट के साथ थोड़ा कंपेयर करना पड़ेगा। सॉल्यूशंस क्या है कि ये जो बुजुर्ग लोग हैं अपना पीयर ग्रुप, अपने साथ वाला ग्रुप ढूंढें। ओल्ड पीपल होम्स को भी वो ढूंढ सकते हैं जो उनको कंफर्टेबल रख सकते हैं। कीप इंटरेस्ट एंड हॉबीज़ अलाइव, अपने इंटरेस्ट और हॉबीज़ को अलाइव रख सकते हैं। और रिटायरमेंट के लिए तब प्लान कर सकते हैं जब वो यंग हो। ये मेरा ओपनिंग है। इट इज़ अ सैड बट ट्रू फैक्ट that almost all over the world, the graying population, older people, finds that it is increasingly lonely planet for them, and they are left alone to fight old age and ill health. The root could be reason. Not only the smaller families, but also that everyone seems to be running and forever intensifying rat race. सब एक ना सिर्फ फैमिली छोटी हो गई हैं पर सब के सब अब एक अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। An antidote is that, antidote means solution. The elderly should accept the situation and begin to prepare for it when still young. The most predominant reason for the phenomena mentioned is that the old people family system itself has broken down in most parts of the world. Gone are the days when there used to be large families living together and everyone used to enjoy themselves with their kith and kin. अपने रिश्तेदारों के साथ enjoy करते थे। There was always someone around to look after the elderly and give them company. Now everyone is spending more and more time in the office in search of better pay packets. और maybe the older generation ने ये start किया था when they were young. और उन्होंने अपने यंगस्टर्स को सिखा दिया कि सब मटीरियलिस्टिक हो जाओ। द पैराग्राफ कंटिन्यूज
but the screen, I'm changing the screen. As a result, family bonds weak हो गए and everyone is running from pillar to post. यहाँ से वहाँ तक कोई भाग रहा है, तो EMIs देनी है. Another reason is globalization. That too means that younger generation hops continents in search of better life. और उनके एजिंग पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को पीछे रहे. हॉप कॉन्टिनेंट्स मतलब दूर दूर तक ट्रैवल करते हो. Furthermore, the falling levels of fitness is a negative fallout of two positive developments. दो अच्छी बातें हुई हैं, लेकिन लोग उसके कारण अनफिट हो गए. Mechanization and medical care. Due to these, the longer lifespan that the humans are enjoying is no longer due to regular workouts in the park. अब मैकेनाइजेशन हो गई है, दवाइयाँ हो गई हैं, तो लोग जी तो रहे हैं पर वर्कआउट वगैरह के कारण नहीं जी रहे. वो जी रहे हैं दवाइयों के कारण और सर्जरीज के कारण. तो ये जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, इट इज़ अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर मिजरी. ये आपको दुख का कारण ही बनेगी जो आपने आरामदायक ज़िंदगी बना ली. वाइल अ प्लेथोरा ऑफ रेमेडीज कुड बी पुट फोर्थ, बहुत सारी रेमेडीज बताई जा सकती हैं. मैं इस ओपिनियन का हूँ कि इट वुड बी यूजलेस टू टर्न द क्लॉक बैक. ब्लैक नहीं, गलत टाइपो है, बैक होना चाहिए. अब घड़ी वापस घुमा नहीं सकते आप. अब जो हो गया वो तो हो गया. द बेस्ट वे फॉर द एल्डरली वुड बी टू एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड ब्रेस देमसेल्फ टू फेस द ओल्ड एज अलोन. अब उनको, बड़ों को अपनी आप ही सोल्यूशन निकालनी पड़ेगी. दे शुड स्टार्ट व्हेन यंग एंड इन्वेस्ट इन पेंशन फंड्स फॉर देयर ओल्ड एज एंड इवन बुक ओल्ड पीपल होम्स फॉर देमसेल्व्स इन एडवांस. खुद ही अपने लिए ओल्ड पीपल होम ले रहे हैं, पेंशन फंड में पैसा लगा के रखें, क्योंकि वहाँ उनके पास कोई ना कोई होगा. ट्विलाइट पीरियड, ट्विलाइट का मतलब जो आखिरी पीरियड के लिए. सेकेंडली, दे कुड फाइंड देयर पीयर्स ऑन द नेट एंड फाइंड कॉमन इंटरेस्ट इन सपोर्ट ग्रुप्स देमसेल्व्स. नेट पे अपने अपने बराबर उम्र के लोगों को ढूंढें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, रादर देन लुक टुवर्ड्स देयर प्रोजेनी. और अपने बच्चों की तरफ ना देखें. हॉबीज़, ये ऐसी चीज़ों पे अपने आप को इन्वॉल्व रखें. ऑल्सो फिजिकली एक्टिव लाइफ स्टाइल वुड हेल्प देम कीप फिट. और अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखें ताकि वो फिट रहें. टू कंक्लूड, ऑन वन हैंड, ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द मॉडर्न लाइफ स्टाइल, द यंग आर अनएबल टू ईदर सपोर्ट द एल्डरली और कीप द कंपनी. तो कंक्लूजन में मैंने फिर से वही टॉपिक को नए शब्दों में समझाया कि अब नहीं कंपनी दे सकते क्योंकि मॉडर्न लाइफस्टाइल ही ऐसा. ऑन द अदर हैंड, सोल्यूशन दे रहा हूँ. इफ़ यू रिकॉग्नाइज दैट दिस इज इनएविटेबल, कि ये होना ही है, तो फिर स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द इवेंचुअलिटी. इवेंचुअलिटी जो चीज़ होके रहनी है, व्हेन इन आर मिडल एज, हम तभी से शुरू कर दें. देन वी कैन एस्केप मच ऑफ द मिजरी दैट द ओल्ड एज एंड लोनलीनेस बिगिंस. तो वो दुख जो ओल्ड एज और लोनलीनेस में आएंगे, उनकी आप उनसे कुछ बच सकते हो. टास्क 1, एक चार्ट और एक ग्राफ था कोका कोला के प्राइसेस और उसकी सेल्स के बारे में. ये चार्ट और ग्राफ था. यू कैन पॉज द वीडियो हेयर इफ़ यू वांट टू लुक एट इट मोर क्लोजली. तो जो मैंने नोट्स बनाए कि 17 बिलियन केसेस से ज़्यादा बिके ईयर 2000 में, उनमें से अ लिटिल बिलो 1/3 नॉर्थ अमेरिका में, जस्ट अ नॉच अबव अ क्वार्टर लैटिन अमेरिका में, अ बिट अबव 1/5 यूरोप में, एशिया में 16%, अफ्रीका में और मिडिल ईस्ट में 7%. तो आप जो उनकी परसेंटेज थी उसको मैंने चेंज कर दिया और 1/3, 1/4, 1/5 कर दिया. और क्योंकि एग्जैक्ट नहीं है तो लिटिल बिलो, लिटिल अबव, नॉच बिलो यूज़ कर लिया. और ये 7% और 16% वाला क्योंकि यूज़ नहीं हो सकता था, किसी कन्वर्जन में नहीं आ सकता था, तो उनको वैसे ही यूज़ करूँगा. और शेयर प्राइस भी देखिए, ये 1996 में जहाँ था, फिर जंप मार के ऊपर गया, फिर थोड़ा डिक्लाइन हुआ, फिर पीक पे गया, फिर डिक्लाइन हुआ, फिर थोड़ा चढ़ा और गिर गया. उसमें टाइम पीरियड भी दिया हुआ. शेयर प्राइस के बारे में मैंने अपने रफ नोट्स किए कि एक तो ये 96 to 01 हाफ अ डिकेड के ऊपर है. $32 था, फिर ऊपर गया ड्रामेटिकली, फिर नीचे आ गया, है ना. फिर माइनर डिक्लाइन हुआ 98 में, फिर पीक हुआ 80 में,
फिर नोज डाइव किया, फिर थोड़ा चढ़ा, थोड़ा गिरा और एंड में 55 हो गया। तो आई विल एक्सप्लेन ऑल दिस इन द कमिंग टास्क। द गिवन इंफॉर्मेशन ग्राफिक या फिर पाई चार्ट कह सकते हैं, इलास्ट्रेट्स एंड कॉरिलेट्स डेटा अबाउट द ब्रेकअप ऑफ सेल्स ऑफ कोका कोला इन 5 रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। 5 रीजन्स में इसकी सेल का ब्रेकअप क्या था। द डेटा इज कैलिब्रेटेड इन केसेस, डेटा की मेजरमेंट केसेस में की गई है, उसकी पेटियां या उसके जो डाले कहते हैं हम। एंड द ईयर अंडर स्टडीज 2000, और ये 2000 में हुआ। द अकम्पनिंग लीनियर रिप्रेजेंटेशन डिफाइंस द वेरिएशंस इन द शेयर प्राइसेस ऑफ कोका कोला over a period spanning about half a decade from 1996 to 2001। ये जो साथ वाला जो काम हुआ, जो ग्राफ है, उसमें उसके शेयर प्राइसेस का ऊंचा नीचा बताया गया। ओवरऑल द मेजर शेयर या द मैक्सिमम रेशियो ऑफ द टोटल केसेस सोल्ड इन 2000 वाज सोल्ड इन नॉर्थ अमेरिका। सबसे ज़्यादा शेयर नॉर्थ अमेरिका में था, और द शेयर प्राइस जो अपनी पीक पे था वो 1999 में था। ओवरऑल में आपने ज़्यादा डेटा नहीं देना होता, कोई ऐसी लाइन लिखनी होती है जिसको समझाने के लिए ये ग्राफ आपको बताया गया। अब डिटेल। अ लिटिल अबव 17 बिलियन केसेस ऑफ द सॉफ्ट ड्रिंक वाज सोल्ड इन 2000। टोटल इतनी सेल थी। जस्ट अ बिट बिलो 1/3 ऑफ दीज केसेस वर सोल्ड इन नॉर्थ अमेरिका एंड जस्ट नॉच अबव अ क्वार्टर इन लैटिन अमेरिका। Moreover, a bit above 1/5 of the total cases was sold in Europe. Asia and Middle East accounted for much lower percentage of the cases, that is 16 and 7 respectively. तो ये बात मैंने उनकी जैसे जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुई, जो चीज़ें मैं चेंज कर सकता था मैंने चेंज कर दी, जहाँ पर मैं चेंज नहीं कर सकता था वहाँ मैंने परसेंटेज लगा दी, और अगर मैंने परसेंटेज लगा दी तो फिर परसेंट का साइन नहीं लगाया, और रिस्पेक्टिवली कैसे यूज किया वो भी देखिए। कमिंग टू द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी, इट वाज अबाउट $32 इन 1997, देन इट शॉट अप ड्रामेटिकली टू बी जस्ट अ लिटिल बिलो $70 इन द नेक्स्ट ईयर। अगले साल ये 70 पे पहुंच गया, थोड़ा सा नीचे था। इट सॉ माइनर डिक्लाइन इन 98 में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ, उसके बाद पीक पॉइंट पे पहुंच गया अप्रॉक्सीमेटली $80 इन 99। ओनली टू नोज डाइव का मतलब बहुत तेजी से नीचे गिरा, टू बिलो $50 इन द फॉलोइंग ईयर, मतलब 2000 में। सम रिकवरी एंड अगेन अ स्मॉल फॉल वर नोटिस इन 2001। थोड़ा सा ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे गया 2001 में, और एंड में इट वॉज अबाउट $55 बाय द एंड ऑफ द पीरियड। दिस इज द लेटर। इफ यू आर अ जनरल कैटेगरी student, the letter is given. There is no solution to the letter in this audio. Please do comment and share with your friends. You're welcome to ask me questions in the class. Thank you.